Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Physics Nexus by Sajad Ali. Today I will explain reflection and refraction of light. Okay, first of all, what is light? Okay, how can we define light? As we know that light is an electromagnetic wave which do not require any medium for their propagation, which do not require any material medium to transfer energy from one place to another place. As we also know that the speed of light is the universal speed, which is the equal to 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second. Okay, so light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave which has speed is approximately equal to 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second in free space. In free space. Okay, all right. What is meant by reflection of light? Reflection of light means when the incident light is strike on some barrier, then the light comes back. This process is said to be reflection. Reflection means reflection of light. Reflection of light means when we have incoming light. For example, this is the incoming light which is called incident ray. This is incident ray. ओके, अगर हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, रे का मतलब क्या है? रे इज द पाथ विच फॉलोड बाय द लाइट. जियोमेट्रिकली हम रे किसे कहते हैं कि हमारे पास जिस पाथ को क्या करेगा, लाइट फॉलो करेगा, उसे हम जियोमेट्रिकली रे कहेंगे. तो हमारे पास एक इंसिडेंट रे है. जब इंसिडेंट रे क्या करेगा, आके एक बैरियर के साथ या ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा. ओके, और जिस पॉइंट पे वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, when incident ray strike on some barrier, then it comes back just like this. Okay, this is the incoming ray which is called incident ray, and this one is the outgoing ray which is called reflected ray. Reflected ray. If we draw an imaginary line which is normal to the plane, okay, which is called normal. Okay, now this is an imaginary line which is called normal. Okay, this normal makes an angle 90 degree with the plane. Okay, this is the plane. Okay, now the angle between incident ray and normal is called incident angle, which is equal to theta r, and the angle which makes with reflected ray with normal, okay, this is called reflected ray, theta r. Okay, now according to first law of reflection, okay, first of all, what is mean by reflection of light? Reflection of light means इट इज द प्रोसेस. ओके, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट क्या होगा, लाइट इज अ वेव. तो वेव जब भी क्या होगा, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, बाउंस बैक होगा. बाउंस बैक क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करके आएगा. ओके, जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा. तो इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, वेव की स्पीड चेंज नहीं होगी, उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा. ओके, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और reflected ray का डायरेक्शन ये है. ओके, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज कॉल्ड नॉर्मल. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes on some barrier. Barrier means opaque object. Opaque object. So what is mean by reflection of light? Okay, reflection of light means it is the bouncing back of light when light is strike on some barrier. Okay, this process is called reflection. Okay, according to first law, if incident ray, reflected ray and normal must be lie on a same plane. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या होना चाहिए, इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। ओके, सेम प्लेन में है, दैट्स व्हाई मैं इसे क्या कर सकता हूं, व्हाइट बोर्ड में या 2 डायमेंशन प्लेन में ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray must lie on the same plane। तो फर्स्ट लॉ इज वेरी सिंपल। ओके, अगर हमारे पास एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है और इन दोनों के बीच में क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है विच इज नॉर्मल। ओके, अगर ये तीनों लाइन जो है वो क्या है, एक ही प्लेन में है। ओके, एक ही प्लेन में अगर लाई करें, ओके, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वैलिड होगा। नंबर 1, द इंसिडेंट एंगल थीटा आई मस्ट बी इक्वल टू थीटा आर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा क्या है, 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ओके, अगर यहाँ पे मेरे पास थीटा 25 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ओके, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स विच आर चेंज ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस प्रोसेस में क्या क्या ऐसी पैरामीटर्स हैं, क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव के, वो चेंज होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, वेव की स्पीड चेंज नहीं होगी। इंसिडेंट रे की जो स्पीड होगी, रिफ्लेक्टेड रे की भी वही स्पीड होगी। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, वेवलेंथ। हमारे पास जो लाइट है, लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन देयर विल बी नो चेंज इन द वेवलेंथ, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, देयर विल बी नो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल एक चीज चेंज होगा, क्या चीज चेंज होगा, डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ वेव विल बी चेंज। ओके, इन दिस प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो स्पीड भी चेंज नहीं होगा, स्पीड हमारे पास क्या होगा, सेम कांस्टेंट होगा। नंबर 1 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नंबर 2 वेवलेंथ भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ओके, नंबर 3 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्पीड सेम रहेगा, वेवलेंथ सेम रहेगी। ओके, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। नंबर 4 सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द वेव। ओके, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी चेंज। ओके, तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ऑल राइट, सेकेंड प्रोसेस इज refraction of light. Okay, what is meant by refraction of light? Refraction of light means when light is travel from one medium to another medium, like when wave travel from air to glass या glass to air. Okay, then the speed of light should be changed. Okay, the direction of light should be changed. Okay, it means that this is the refraction of light. Refraction of light means the bending of light. Okay, when wave is travel from one medium to another medium, जब भी हमारे पास वेव क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, चाहे एयर से ग्लास में, चाहे एयर से वाटर में या वाटर से एयर में, तो वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा। रिफ्लेक्शन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन भी चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ओके, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास लाइट क्या करेगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। अभी स्पीड जो है कब उसकी इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, ये क्या करेगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। एनीहाउ, on the basis of barrier there are two types of reflection of light. ओके, हमारे पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी वो दो तरह से हो सकता है। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, बैरियर जो है वो क्या है, स्मूथ सरफेस है। ओके, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, वन टाइप इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनदर टाइप इज द डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मेरे पास जो बैरियर होगा ये क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ surface like plane mirror
अगर लाइट जो है वो प्लेन मिरर के साथ टकराएगा, तो प्लेन मिरर हमें पता है कि क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, लाइट जिस डायरेक्शन में जाएगा, फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे, ओके, दिस वन इज द नॉर्मल, this is normal, this is incident ray, incident ray, I, incident ray, and this is the reflected ray, reflected ray. तो अगर मेरे पास क्या है, बैरियर जो है वो स्मूथ सरफेस है, ओके, तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नंबर वन, रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि लाइट जो है एक प्लेन मिरर के साथ टकराएगा या स्मूथ सरफेस के साथ टकराएगा, तो यहां पे हमारे पास क्या होगी, जिस एंगल से ये टकराएगा, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। अभी अगर इसके बजाय क्या है, सामने जो सरफेस है वो क्या है, हमारे पास रफ सरफेस है, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफ्यूज्ड और इररेगुलर, ओके। नंबर टू हमारे पास क्या है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो बैरियर होगा, ओके, बैरियर हमारे पास होगा, स्मूथ नहीं होगा बल्कि रफ सरफेस होगी, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस में क्या होगा, अगर मेरे पास बीम ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल ये बीम ऑफ लाइट है, ये आके टकराया फॉर एग्जांपल यहां पे, और टकराने के बाद इस तरह वापस आया, ओके, तो यहां पे इंसिडेंट एंगल है और ये क्या है, मेरे पास रिफ्लेक्टेड एंगल है। लेकिन अगर मेरे पास बीम ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल अगर ये यहां पे टकराए, टकराने के बाद क्या होगा, इसका इंसिडेंट एंगल, ओके, इंसिडेंट एंगल में और रिफ्लेक्टेड एंगल में क्या होगा, डेविएशन होगी। डेविएशन का मतलब क्या होगा, डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या होगी, बीम ऑफ लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, ओके। यहाँ पे क्या हो जाते थे, डाइवर्ज हो जाते थे सेम डायरेक्शन में। अगर पैरेलल बीम है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, पैरेलल बीम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर वन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो सरफेस होगी वो स्मूथ सरफेस होगी, ओके, लाइक प्लेन मिरर होगा, ओके। अगर मेरे पास क्या, डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब सरफेस क्या होगा, रफ सरफेस होगा। रफ सरफेस का मतलब क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है, जस्ट लाइक पेपर होगा, वुड होगा या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। पेपर हो सकती है, ओके, वुड, ओके। तो लाइट जब आके क्या होगा, पेपर के साथ टकराएगा या वुड के साथ टकराएगा तो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ओके। तो बीम ऑफ लाइट क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी। तो रिफ्लेक्शन जो है हमारे प्रैक्टिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ड्यू टू रिफ्लेक्शन हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। अगर इफ देयर विल बी नो लाइट, इट मींस दैट इफ देयर विल बी नो लाइट देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, ओके। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, तो हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, हमारी आंख क्या करेगा, किसी भी चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ओके। किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए लाइट चाहिए, और लाइट के साथ साथ क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, ओके, ओके, ऑलराइट। सेकेंड प्रोसेस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके, रिफ्रैक्शन। Refraction means when light is travel from one medium to another medium, okay, then the light is bent, okay। जब हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, लाइट हमारे पास लाइट जो है वो एयर से अगर ग्लास में आ जाए या वाटर में आ जाए, या वाटर से ग्लास में चला जाए, ओके। अगर एक डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में चला जाए या रेड मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, उसके जो पाथ है या उसकी जो फॉर एग्जांपल पाथ है उसमें क्या होगा, या उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा, साथ साथ उसकी स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी, ओके। तो व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to
other medium. Okay, so what is mean by refraction? Refraction means when light is travel from one medium to another medium, like this. Okay, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, एयर है, एयर इज अ मीडियम, और यहाँ पे क्या है, ग्लास है, तो अगर इंसिडेंट रे जो है वो ट्रेवल करेगा एयर से ग्लास में, तो वो क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज इंसिडेंट रे, okay, this is the point of incidence, so this is the incident ray. Okay, this is an imaginary line which is called normal, which is normal to the surface. Okay, now when light is travel from one medium to another medium, then the light should be bent. Okay, तो light क्या होगा, bend होगा. जस्ट लाइक दिस. ओके, देखिए इस तरह सीधा जाने के बजाय अपना रास्ता क्या किया, लाइट ने चेंज किया. ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे का, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा आर. दिस इज द इंसिडेंट एंगल. और नॉर्मल के साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दिस इज थीटा आर, कैपिटल आर. कैपिटल आर मींस दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. ओके, तो इससे हमें पता चल रहा है कि व्हेन लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन लाइट मस्ट बी बेंट. ओके, और लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स चेंज होंगे, उसकी स्पीड चेंज होगी. स्पीड क्या होगी, चेंज, नंबर वन. नंबर टू, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो भी चेंज होगी. नंबर थ्री, डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज. ओके, जस्ट लाइक दैट. और क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होगा. When light is travel from one medium to another medium, these are the parameters which will be changed. Okay, number one, speed change होगी. Number two, wavelength उसकी change होगी. Okay, direction उसकी change होगी, और frequency जो है वो constant होगा. Okay, frequency depends on the source. frequency किस चीज पे डिपेंड करेगा, सोर्स से डिपेंड करेगा कि कहां से, किस सोर्स से जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इमिट हुए हैं. ओके, तो देखिए अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या लाइट है, लाइट जब क्या होगा, एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगा. ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी. अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करें, इफ लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, वेवलेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, कांस्टेंट. ओके, डायरेक्शन भी चेंज होगा. लेकिन अभी अगर हमारे पास क्या है, एक इंसिडेंट वेव है ना, तो वो अगर इंसिडेंट वेव जो है वो ग्लास से एयर में चला जाए इस तरह. ओके, जब एयर में चला जाएगा ना, व्हेन लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ओके, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेवलेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ओके, थैंक यू.